আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু আজি আপ অসমে তেজপুৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল পাতি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আপ অসম ক'ত ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান আৰু অসমত আপৰ স্থিতি সম্পৰ্কে জানিব দিয়ে। এই সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰে উত্তৰ পূব ৰাষ্ট্ৰীয় তত্ত্বাৱধায়ক শ্ৰীযুত ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে উপস্থিত থাকে আপ শোণিতপুৰ লোকসভাৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কৌন্দিন্য ডাঙৰীয়া। আজি এটা নিউজ চেনেলত মনোজ ধানোৱাৰৰ আমন্ত্ৰণ কৰি নি তেখেতৰ দেউতাক কংগ্ৰেছৰ MLA আছিল বুলি কৈ তেখেতৰ পিতৃৰ পৰিচয় তেখেতৰ পৰিচয় বুলি কোৱা কথাষাৰ মোৰ যথেষ্ট বেয়া লাগিল। তেখেত এই নিৰ্বাচনত হাৰিব সেয়াও তেখেতৰ মুখৰ পৰাই কোৱাব খুজিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খোজোঁ যে পুত্ৰই নিজা পৰিচয় বনাব পাৰে। গণতন্ত্ৰত ভোট দিহে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হয়। কোনো পক্ষপাতিত্ব কৰা চেনেলে নিগেটিভ দেখুৱালে তেখেত হাৰি নাযায়। তেখেত ৰাইজৰ কাৰণে কিমান কাম কৰিছে তাৰ ওপৰতহে জয় পৰাজয় নিৰ্ভৰ কৰিব। আনফালে শাসকীয় দলৰ জয় নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে EVMৰ হেকিং ছিষ্টেম যি বাৰে প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে ই নিশ্চিত গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰা বুলি ভাবোঁ। আমাৰ দেশৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি ভাবোঁ। ইমানখিনি কথা কিয় ক'লোঁ জানেনে? মই এদিন যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আপৰ জইণ্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ হৈ আছিলোঁ। আজি যোৰহাটৰ চুকে কোণে যি আপক চিনি পায় তাক মই প্ৰথম চিনাকি কৰাইছিলোঁ আৰু বনায়ো দিছিলোঁ। যোৰহাটত বনিও গৈছিলে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গ কিছুমান কাম কাজত মই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। কাৰণ যি পাৰ্টিটোৰ কাৰণে আছিল অন্তৰায় আৰু অৱশেষত মই আপ এৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। মোৰ আত্মসন্মান চবতকৈ প্ৰথম। মই ৰাজনীতি বুজি নাপাওঁ। সি যিয়েই নহওক মই আজিও কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ। মই এৰি দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকক জনাইছিলোঁ আহক মোৰ অফিচত বহি আখুৱাখিনি আঁতৰাই আমি সকলো একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ। মই এইখিনিও কথা দিছিলোঁ যে মই গোটেই অসমত আপ বনাবলৈ যত্ন কৰিম। তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। এতিয়া মই যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ কোনো দলত নাই আৰু কোনো চেনেলে আপৰ এই সংবাদমেলটো ভালকৈ নেদেখুৱালে। কাৰণ এখন সফল গণতন্ত্ৰত সুস্থ সবল বিৰোধীৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। মোৰো দৃঢ় বিশ্বাস কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া নিষ্ঠা আৰু সততা এদিন অসমতো শাসকীয় দলৰ প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে থিয় দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আহক আমি শ্ৰীযুত ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সংবাদমেলখনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান সম্পৰ্কে কি ক'লে পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ মুখৰ পৰাই শুনো। आम आदमी पार्टी असम में 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। एक है डिब्रूगढ़, दूसरी है सोनितपुर और तीसरी है गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ से अभी कंफर्म हो गया? अभी हमारी तरफ से कंफर्म है, हमने उसकी घोषणा कर दी है। तीनों सीट में हमने सीटों की के साथ साथ हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। डिब्रूगढ़ में श्री मनोज धनवार जी उम्मीदवार हैं, सोनितपुर में श्री ऋषिराज कौंडिन्य जी और गुवाहाटी में डॉक्टर भवेन चौधरी जी। और 2 दिन पहले दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था उसमें तो कांग्रेस ने नहीं छोड़ा था, डिब्रूगढ़ आपको नहीं देंगे बोला। देखिए अभी तक कोई उसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं है। आम आदमी पार्टी ने क्योंकि बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है उस वजह से हमें क्योंकि ग्राउंड पे उतरना है अपनी तैयारियां करनी है इसलिए हमने अपना काम शुरू कर दिया। इंडिया अलायंस में आप सेंटर में भी है लेकिन असम में रहेगा कि नहीं? देखिए इंडिया अलायंस का पार्ट हम लोग पहले भी थे और हम लोग अभी भी हैं और इंडिया अलायंस में हम लोग हैं। आज भी आप लोग देख रहे हो कि दिल्ली की लोकसभा के लिए चर्चा दिल्ली में हो रही है। तो हम लोग इंडिया अलायंस का एक मजबूत पार्ट है। हमारा एक ही मकसद है कि चुनाव को अच्छे से लड़ना, ऐक्यबद्ध तरीके से लड़के और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो ये संकल्प है उसकी मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, इस देश के संविधान के ऊपर हमला कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी दलों ने मिलकर देश में इंडिया अलायंस का गठन किया है और असम में भी 15 दलों ने मिलकर विरोधी ऐक्य मंच का गठन किया है। तो निश्चित रूप से हम इसका हिस्सा हैं और हम पूरी ताकत के साथ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। कांग्रेस ने तो बोला है अगर आपने ये तीनों सीटों से 1 या 2 सीट नहीं छड़ेगा तो आप रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं, ऐसा कोई बात हमारी नज़र में नहीं है, किसी ने भी नहीं बोला है। ये स्पेकुलेशंस चल रही हैं इस तरीके की बातों की। हमारे सामने कोई इस तरीके का स्टेटमेंट ना तो कांग्रेस दल के सभापति से आया है, ना विरोधी ऐक्य मंच के किसी से आया है। इस तरीके की बातें मीडिया में हमने ज़रूर देखी है, लेकिन इस तरीके का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं। अगर सोनीतपुर में कांग्रेस ने पार्टी घोषणा कर दी तो देखिए, करेगी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि हमने एक चीज़ का तो फैसला किया हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक ही विरोधी का प्रार्थी होना चाहिए। तो जब बीजेपी को हराना ही हमारा संकल्प है, तो हम क्यों एक सीट पर दो दो तीन तीन कैंडिडेट देंगे? फिर तो जो ऐक्य मंच है उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को बचाने के लिए, इस संकल्प को बचाने के लिए हमें एक सीट पर एक उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए। हमने 3 सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की है, और साथ ही साथ हमने विरोधी ऐक्य मंच को और इंडिया अलायंस को अनुरोध किया है कि इन 3 सीटों पर और किसी का नाम घोषित नहीं किया जाए। बाकी जो असम की 11 सीटें हैं, उन 11 सीटों पे आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन, विरोधी मंच के जो भी साथी होंगे, जो भी दल होंगे, उनके जो भी प्रार्थी होंगे, उन्हें हम पूरा अपना समर्थन देंगे। तो मुलुगत যদি লৰিণ যদি উঠে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ঘোষণা কৰিছে যে हमारी तरफ से हमने सभी को आह्वान किया है कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने तीनों सीट पर 3 मजबूत उम्मीदवार घोषित किए हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का एनालिसिस किया है, आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड का सर्वे किया है। डिब्रूगढ़ में हमारे मनोज धनवार जी की स्थिति बहुत अच्छी है, सोनीतपुर में ऋषि कौंडिन्य जी की स्थिति अच्छी है, और इसी तरीके से गुवाहाटी में भी आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, डॉक्टर भवेन चौधरी जी की। उसी स्थिति को एनालिसिस करके हमने 14 में से 3 सीटों को चुना है जिस पर हमें चुनाव लड़ना है। और हम फिर से सभी को अनुरोध कर रहे हैं कि इन 3 सीटों पर हमारा समर्थन करें। 11 सीटों पे हम बाकी सभी दलों का समर्थन करेंगे। हमें ऐक्यबद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी अलोकतांत्रिक सरकार को बदलने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। असम की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। असम की जनता आज भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। तो हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना, आने वाले 2026 में इस सरकार को उखाड़ फेंकना भी जरूरी है, और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो विरोधी ऐक्य मंच के बाकी सभी दल हैं, उनको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करना चाहिए। रेडियो कॉमर्स में ऐसा 2 दिन पहले कोई दिल्ली में डिसीजन लिया क्या है? डिब्रूगढ़ अध्यापक को नहीं, इस तरीके का कोई फैसला नहीं है। हमारी नॉलेज में इस तरीके का कोई फैसला नहीं है, ना हमारे पास कोई इस तरीके का कम्युनिकेशन आया है। हम लोग हमारी स्थिति पे अडिग हैं कि हमें 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो है सोनीतपुर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। और उसका एक ही कारण है कि हम ये मानते हैं कि चुनाव लड़ना सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ने से जीतने के लिए लड़ना चाहिए। चुनाव को जीतने के लिए अगर लड़ना है तो आपको समय पर ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, आपको समय पर प्रचार करना पड़ेगा, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं समझनी पड़ेगी, लोगों को आपकी मैसेजिंग क्या है वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी कि आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं, कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, ये जनता को बताना पड़ेगा, तभी जनता को समझ आएगी। तो ये सारी बातें लेकर जनता के बीच में जाने के लिए, एक लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख के आसपास जनता है, या 18 लाख लोगों तक हमें पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो अगर हम सिर्फ आलोचना, प्रयालोचना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग, मेल में रह जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो हमें ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, और इसीलिए हमारे तीनों प्रार्थी, तीनों कैंडिडेट्स वो ऑलरेडी ग्राउंड पे उतर चुके हैं, रोज सभाएं कर रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं। आज 176 गांव पंचायत में, 176 पंचायत में हमारा निर्वाचनी कार्यालय खुल गया है। आज हमने निर्वाचनी जो हमारे जो पोस्टर्स हैं वो भी जारी किए हैं। देखो